Morning, kids. In today's class, we are going to discuss about the current electricity chapter, JEE Mains 2024 PYQ. This is the one of the very important chapter. So earlier in the olden pattern, so they used to ask like out of 32 questions. Now the pattern has changed. 25 questions has come. So we can expect only one question from this chapter. And it's a lengthy chapter and manageable, easy. Some very difficult questions are there, also very easy topics are there, very difficult. And the JEE means he has preferred more to ask from the easy topics. So what all the, we'll just explore 2025 PYQ, especially the January shift it is. You'll get exact idea how to manage this particular JEE mains like a current electricity. We'll start with the first question. The current in a conductor is expressed 3t square plus 4t cube. The amount of electric charge that flows through a section of conductor. So ये तो क्वेश्चन है बेसिक चार्ज के बारे में. So how we define I equal to dq by dt. So इसको dq हम ऐसे high dt. And there's one basic definition. So what is the definition क्या है current का? Rate of current means rate of flow of charge. Any quantity that varies with the time उसको हम rate of flow बोलते हैं. तो इसका हम इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे करंट का 3t square 4t cube dt. This is dq. So 1 to 2 seconds कितना चार्ज फ्लो हो चुका है. Okay, this should be equal to q equal to 3t cube by 3. So t cube plus t to power of 4 1 2. इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जैसे ये तो 2 क्यूब हुआ माइनस 1 क्यूब 2 to power of 4 minus 1 to the power of 4. So ये हुआ 8 minus और 16 minus 1. 16 plus 8 24 minus 2. So total हुआ 22. तो 22 coulombs of charge वो एक कंडक्टर से फ्लो होता है. सो व्हाट इज द बेसिक डायग्राम. द डायग्राम यहाँ पे आपको करंट फ्लो हो रहा है. इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो चुका है, टोटल चार्ज. सो 22 coulombs इज व्हाट. यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो हो चुका है, 22 coulombs. ये तो सिंपल डेफिनेशन हुआ. फिर लाइक यहाँ पे सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन मेंस इज इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारे बच्चे like I had one comment like sir please discuss some important questions. But you आप एक बार देखिए PYQ JEE Mains का हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सिंपल डेफिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन. बट सम majority of topics is being asked again and again. So like that is ammeter, voltmeter, galvanometer, ammeter, voltmeter, Wheatstone network, bulbs, series parallel. ये तो ये टॉपिक्स है like most repeated. I'll write it. Current टॉपिक जो है ammeter, voltmeter, galvanometer, bulbs, series parallel और बेसिक सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो इन टॉपिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछ चुके हैं. और व्हीटस्टोन नेटवर्क भी एक था. तो यू हैव टू रियली स्ट्रेस. सो यहाँ पे आप गैलोमीटर कन्वर्शन टू एमीटर, गैलोमीटर कन्वर्शन टू वोल्टमीटर, गैलोमीटर रेजिस्टेंस, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. ओके फाइन. बल्ब सीरीज पैरेलल में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का आइडिया यहाँ पे है.
Just small formulas. Don't go for very high, tough, like a big networks. Simple series parallel or Western network. There's a threshold area, what we call threshold area. कंपल्सरी ये सब आपको चैप्टर पढ़ना है. दिस आर लाइक ए हाई प्रियोरिटी थ्रेशोल्ड एरिया. बाद में इसके बाद में यू कैन गो फॉर ओम्स लॉ. देन नेक्स्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूलास, रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क. दिस आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली सिंपल केसेस. इसके बाद में सो यू कैन नेक्स्ट थिंग इज लाइक ए you can take the Western network को और temperature resistance varies with the temperature. So these are some topics are there which you can use. So there's the high priority, low priority. So the safest thing is जो भी चैप्टर है सब पहले theory पढ़ लो, फिनिश. प्रॉब्लम प्रैक्टिस इसमें ज्यादा कर लो, इसमें कम कर लो. दिस इज द वन स्ट्रेटेजी है. अगर इसमें से थोड़े कुछ क्वेश्चंस आ गए तो भी यूजिंग फॉर्मूला यू शुड नो हाउ टू मैनेज. यहाँ पे थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला याद करो और थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो. यहाँ पे थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करे तो भी ओके फाइन, यू कैन मैनेज इन एग्जाम. दिस इज वन स्ट्रेटेजी फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. A galvanometer has a resistance of 50 ohm and it allows maximum current of 5 milliampere. It can be converted into voltmeter. How much of series resistance has to be connected? So या तो आप हम एक गैलोमीटर ले लेंगे, बाद में एक सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. इसका गैलोमीटर रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम और इसका मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर. तो हम जो ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं इट विल ड्रॉप अक्रॉस V1 और बाकी बचे सो हम जो ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं वो विल बी अक्रॉस गैलोमीटर. राइट, KVL प्लस V मैक्स. यहाँ से हम जा रहे हैं. If you move from negative to positive terminal, rise in EMF plus Vmax, then IG into RS. यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है सो इट विल बी IG. तो करंट विल एंटर पॉजिटिव वेयर इट लीव्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. So then you are moving from negative to positive terminal. इसका तो rise in EMF हुआ plus Vmax. तुम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, फॉल इन EMF, फॉल इन IR ड्रॉप. तो फॉल इन IR ड्रॉप कितना हुआ? माइनस IG इंटू RS. देन अगेन यहाँ से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं अक्रॉस द गैलोमीटर, फॉल इन ड्रॉप. सो इसका हुआ ना माइनस IG इंटू G. और एक सवाल पूछ सकते हैं आप, लाइक सर इसका पोलैरिटी कैसे दे रहे हैं आप? जहाँ पे करंट एंटर होता है सो दैट एंड शुड बी पॉजिटिव. जहाँ पे करंट लीव हो रहा है और बाहर आ रहा है सो दैट एंड विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है सो दिस एंड विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है सो देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव टर्मिनल. ओके फाइन. यहाँ पे हम एक EMF अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम वोल्टेज. तो इसका वैल्यू लगा देंगे. सो IG कितना? 5 IG कॉमन. सो RS वैल्यू पूछ रहे हैं ना. ओके फाइन. Vmax कितना हुआ? 100. IG का वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 RS, 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 गैलोमीटर रेजिस्टेंस 50.
यहाँ पे हम आर एस को सॉल्व करेंगे. 100 5 इंटू 10⁻³ आर एस प्लस 50. यहाँ से हमें 5 1 जा 520. सो 20 इंटू 10⁻³ आर एस प्लस 50. आर एस कितना हुआ ये तो 20,000. 20,000 में हम 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 19,950. मैक्सिमम चांसेस गोइंग रॉन्ग. कैलकुलेशंस गोइंग रॉन्ग. ये तो हुआ तुम्हारा टोटल कॉन्सेप्ट है. वोल्ट मीटर, कन्वर्शन ऑफ गैलमीटर टू वोल्ट मीटर. कुछ भी नहीं यार, जस्ट अप्लाई केवीएल. वी मैक्स इक्वल टू आई जी इंटू आर एस. देन देन आई जी इंटू जी. देन अगर अगर आपको आर एस पता है तो वी मैक्स वी कैन फाइंड आउट. अगर वी मैक्स पता है तो देन यू कैन फाइंड आउट आर एस. दिस व्हाट कन्वर्शन ऑफ गैलमीटर टू वोल्ट मीटर. Now, what is this galvanometer? It can read any range 0 to 100 ohm. अगर आप galvanometer को एक RS resistance in series रख दिए तो then the same galvanometer now will read any voltage from 0 to 100. So range कहाँ से हम we have increased it. Galvanometer का range कितना है? Galvanometer का range कितना हुआ? 50 into 5 into 10⁻³ तो इसका रेंज हुआ 250 मिली एम्पियर. मीन्स कितना करंट मेजर कर सकता है गैलोमीटर, अकेला गैलोमीटर? 0 to 250. अगर आप एक सीरीज रेजिस्टेंस रखे तो, अगर एक रेजिस्टेंस आप सीरीज में गैलोमीटर को जॉइन करें तो इसका करंट मेजरिंग कैपेसिटी, इसका इसका वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी कितना 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 हो जाता है? 0 to 100. इट्स लाइक ए वोल्ट मीटर. यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ. 250 मिली वोल्ट. तो ये वो गैलोमीटर का वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट. एनी वोल्टेज 0 to 250 ये मेजर कर सकता है. इससे ज्यादा अगर आप अप्लाई किए तो अक्रॉस गैलोमीटर द गैलोमीटर विल बर्न आउट और विल गेट डैमेज. अगर आप एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे देन उसका वोल्टेज रेंज बढ़ जाएगा. तो अगर आप 19,950 ओम अगर आप इन सीरीज रखे तो इसका वोल्टेज रेंज नाउ विल बिकम 0 to 100. So we are not changing anything to galvanometer, only some resistor connected in series. So this particular formula, ये जो formula है आपको याद रखना पड़ेगा. This is very important. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये थोड़ा रीडिंग इन आइडियल वोल्टमीटर. इसका वोल्टमीटर का रीडिंग पूछ रहे हैं. यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सेल्स हैं एंड ऑल द सेल्स. एक बार सेल्स चेक कर लो. हर एक का सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है और 5 वोल्ट ईएमएफ है. देन सभी सेल्स चेक कर लो. ऑल दे आर आइडेंटिकल. देन ये भी, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 5 वोल्ट ईएमएफ है. इसका भी 0.2 ओम 5 वोल्ट ईएमएफ है. ये सभी सारे सेल्स 60 सेल्स है. 6 3 1 या 3 60. ये सभी 7 सेल्स ऑल दे आर इन सीरीज. उसके बाद में यहाँ पे और एक सेल है. इसका वोल्टेज कितना है? ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2. यहाँ पे वोल्टमीटर का रीडिंग पूछ रहे हैं. सो कैसा देन फाइंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कॉन्सेप्ट चला अप्लाई. नो, रियली आप एक बार वोल्टमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि आइडियल वोल्टमीटर. आइडियल मीन्स इसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं. फाइन. देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? सो यहाँ पे कितना ड्रॉप है? दिस ड्रॉप इज व्हाट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. वी राइट ए बी. देन ओके सर, लाइक ए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मीन्स ए इसका इक्वलेंट सेल रिप्लेस करता हूं, बाद में इसका इक्वलेंट सेल रिप्लेस करता हूं. द आंसर इज नो. बिकॉज
यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, सो दिस विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, सेम करंट विल फ्लो। एक कंप्लीट लूप में करंट जो फ्लो रहा है वो सेम रहता है। सर लगे यहाँ पे क्यों ब्रांच नहीं हो रहा है? वाई देयर इज नो करंट इज नॉट ब्रांचिंग हियर? इसका रीजन क्या है बोले तो, दिस वोल्टमीटर इज आइडियल। आइडियल मीन्स इसको आप ओपन सर्क्यूट चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे करंट विल बी जीरो, नो करंट। फिनिश, हाँ। यहाँ पे आप, देयर इज नो करंट हियर। देन सो सिंपल केवीएल यहाँ पे आप, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सिंपल केवीएल। पहले ये 7 सेल को हम रिप्लेस करेंगे। इसका ईएमएफ कितना हुआ? 0.2, ये 5 वोल्ट। ओके, दोनों का सेल्स, डोंट गो फॉर पैरेलल। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी करंट है वो करंट इस लूप में ही फ्लो हो रहा है। द रीजन, वोल्टमीटर इज आइडियल मीन्स ओपन सर्क्यूट। यहाँ पे कुछ करंट नहीं फ्लो होता है, फ्लो नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द करंट? आई इज इक्वल टू, लूप इक्वेशन रख दो, +5। ओके सर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एंड प्लस माइनस पोलैरिटी वो भी दे दो। देन लूप इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव हो रहा हूँ। सो राइज इन ईएमएफ +5 वोल्ट। इसके बाद में देन माइनस 0.2 I +5 माइनस 100/24। 100/24 विल बी 25 यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, देन बाद में इसका हम पोटेंशियल ड्रॉप ले लेंगे, VB माइनस 0.2, यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस 0.2 I +5 माइनस VA 0। VBA इज इक्वल टू 0.2 I +5। आई का वैल्यू कितना है? 25। 25 2 50, 5 5 10 वोल्ट। टोटल कितना हुआ है? दिस इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ पे लिख दो, वोल्ट मीटर रीडिंग। ओके, नाउ कितना 1 है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ। दिस विल बी 8। ए बी +5। इसका इक्वलेंट यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गलत हुआ। 7 1 2 3 4, कितना 7 सेल है ना? यहाँ पे भी 7 हुआ। सो बल कुल मिला के कितना, ये थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग है यहाँ पे। 18 to, okay, this will be 18 to 5, also this will be 18 to 5।
8 into 0.2 I. तो I का वैल्यू कितना हुआ? 5/0.2, 50/2, 25 एम्पियर। ट्वेंटी फाइव एम्पियर हुआ, तो यहाँ पे लगा देंगे 25 एम्पियर वी ए बी। 0.2 into 25, 25 into 2 will be 55, 5 by 10 volt. Okay, fine. Huh? Reading of voltmeter, इसका रीडिंग कितना है नो? Will be more than 5 volt. ये तो more than 5 volt. Some key correction. Sir, what do you mean by ideal voltmeter? Ideal voltmeter means उसका resistance infinite internal resistance. Okay, fine. So this is the meaning of ideal voltmeter. अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Next question is, in ammeter 5% of the main current passes through the galvanometer. If the resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter. So ये जो ammeter कैसे बनता है? So पहले इसका galvanometer है, यहाँ पे हम एक resistance shunt बोलते हैं इसको. So we are connecting it in parallel. So ये जो current IM flow हो रहा है, यहाँ पे करंट IG फ्लो होता है और बाकी बचे सो करंट I माइनस IG यहाँ पे फ्लो होता है. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. ओके फाइन. सो ये हुआ गैल्वेनोमीटर. हाँ सर, व्हाट इज दिस करंट? ये जो करंट हम मेजर करते हैं, सो ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है. So current will branch galvanometer current and I minus IG current passing through the shunt. बाकी बचे, so the total current I will come from here. Then in ammeter 5% of main current passes through the galvanometer. 5% of main current means IG का वैल्यू कितना है now? 5%. 5% of main branch current. 5/100 into I. So ये हुआ 0.05 I. IG का वैल्यू. तो नाउ अब इसके बारे में पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज द शंट वैल्यू? तो ये जो ड्रॉप है, नो दे आर पैरेलल. द ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस द शंट बिकॉज दे आर पैरेलल. यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे. IG into G should be equal to I minus IG into S. यहाँ पे हम I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. I वैल्यू विल बी IG by 0.05. यहाँ से IG कैंसल हो जाता है. Then they will get this. G is equal to 100/5 minus 1 into shunt value. 20 minus 1. तो shunt का वैल्यू हुआ now G is equal to 20 minus 1 will be 19. Shunt का वैल्यू हुआ G by 19. Approximately we can go for G by 20. It's approximated. Nearest value we are picking up. Okay, कुछ लगे
या इन एग्जाम्स इट हैपेंस, नियरेस्ट वैल्यू इज व्हाट हम ले लेते हैं। अगर ऑप्शंस मैच नहीं हो तो यू हैव टू पिक अप फॉर नियरेस्ट वैल्यूज। अगेन अगेन, गैलोमीटर, कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर। अगर आपको गैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लो वैल्यू ऑफ शेंट, शेंट लो रेजिस्टेंस, सी वन, ये दो ऑप्शंस रूल्ड आउट नो, बिकॉज एमीटर का व्हाट इज द बेसिक आइडिया, द शेंट should value of shunt should be less than gallonmeter, so these two are ruled out. No, बाकी बचे सो ये दो ही ऑप्शन है। ये इसे आप आपका ऑप्शन चेक कर सकते हो। सिंपल आइडिया, वंस अगेन आई रिपीट, ये जो आप गैलोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो आपको लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल गैलोमीटर कनेक्ट करे तो देन दिस होल सेटअप will become ammeter, and this is the current which आप जो मेजर कर रहे हैं, गैलोमीटर करंट फ्लो होता है, तो देन दिस विल बी आई माइनस आई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नो, दिस इज थोड़ा ये वीस्टोन नेटवर्क एंड सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। To measure the temperature quotient of resistor alpha of semiconductor in electrical element shown in the figure is prepared. The arm BC is made up of the semiconductor. यहाँ पे हमें एक semiconductor है, fine. To confuse you, not given, but यहाँ पे एक semiconductor हम connect कर चुके हैं। The experiment is conducted at 25 degrees and the resistance of semiconductor arm is 3 ohm. Arm BC is cooled at a constant rate. If the galvanometer G shows no deflection after 10 seconds, then alpha. इसका अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट्स बी द फॉर्मूला? अगर आप ये ले लिए तो ओके, नो, वीस्टोन नेटवर्क कंडीशंस अप्लाई करेंगे। रेशियो ऑफ द आर्म्स आर ए बी बाय आर बी सी, इसका रेशियो आर ए डी बाय आर डी सी। दिस इज वन बेसिक आइडिया वीस्टोन नेटवर्क का। द रेशियो ऑफ दिस टू आर्म्स आर ए बी बाय आर बी सी शुड बी इक्वल टू आर ए डी बाय आर सी डी और आर डी सी। देन आर ए बी का कितना, 0.8 10 टू पावर ऑफ 3। आरबीसी का वैल्यू पता नहीं, सो वही 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 तो हम कैलकुलेट करेंगे। आरबीसी आर ए डी 1 मिली ओम, आरडीसी 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। 0.8 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3, सो 2.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना रहे तो करंट तो गैलोमीटर भी 0, इट शुड बी 2.4 ओम। इसके लिए इसका इसका रेजिस्टेंस कितना है ये ब्रांच का, है सेमीकंडक्टर का, 3 मिली ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस, is cooled at a constant rate 2 degree per 2 degree Celsius per second. If the galvanometer shows no deflection after 10 seconds, means इसका like कितना टेम्परेचर इनिशियली 25 डिग्री, 10 सेकेंड में इट इज कूलिंग फॉर एवरी 1 सेकेंड 2 डिग्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, कम हो रहा है। तो देन हाउ मच इट शुड बी आफ्टर 10 सेकेंड्स, ये तो 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ नो, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इनिशियल वैल्यू आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा रख दो। तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस कितने चाहिए हमें, 3 मिली ओम पहले था, अब कितना ए ए ए चाहिए 2.4, सो द डिफरेंस कितना हुआ 0.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। ये तो आर नॉट वैल्यू है इनिशियली, 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 एंड अल्फा। टेम्परेचर कितना कम हो रहा है इन 10 सेकेंड्स, फॉर एवरी 10 सेकेंड, फॉर एवरी 1 सेकेंड 2 डिग्री सेल्सियस, इन 10 सेकेंड्स में 20 डिग्रीज।
इसका अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो 0.63 इंटू 20, ये हुआ 1 इंटू 10⁻², डिग्री सेल्सियस। ओके सर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है बिकॉज वी आर डिक्रीजिंग द डेल्टा आर विल बी नेगेटिव, यहाँ पे रख दो बस, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर मीन्स अगर आप be schooled at a constant if the calorimeter shows no deflection after 10 seconds, then alpha will be. And there's one basic idea. So यहाँ पे Wheatstone network idea, Wheatstone network, then temperature, variation of resistance with temperature, दोनों आइडिया यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम. We take the next question. In a meter bridge, when a resistance in left gap is 2 ohm and unknown resistance in the right gap, the balance length is found to be 40. On shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by. बेसिक व्हीटस्टोन नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग, बट इन एग्जाम में ये डायग्राम आपको शुड बी देयर विद इन योर इमेजिनेशन. दिस इज लेफ्ट गैप इज 2 ohm. यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 2 ohm. अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है. फाइन. द बैलेंस लेंथ फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, बाकी बचे तो कितना? 60 सेंटीमीटर, बिकॉज मीटर ब्रिज द नाम में ये लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना है? मीटर ब्रिज, द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन मीटर ब्रिज विल बी 1 मीटर ब्रिज. तो 40 सेंटीमीटर, बाकी बचे तो वायर का लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर. नो, ये वायर का यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस रहता है. okay, नो यहाँ पे on shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by with 2 ohm. Okay, अगला सर्क्यूट. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लाइक वी आर पहले एक्स था, एक्स है, नो एक अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं. फाइन. सो इसका नाम थोड़ा से होने टाइम लग रहा है. Then again same Wheatstone network idea. The ratio of this by this arm should be equal to ratio of this by this. So 2 by x should be equal to lambda into 40 by lambda into 60. So 2 by x should be equal to, this will be 2 by 3. So x equal to 3 ohm. The balance length changes. The new balance length यहाँ पे हम find out करेंगे. So this will be 100 minus n. तो x का वैल्यू कितना है? 3 ohm. No. So now again the current through galvanometer is 0. So 2 by 2 plus x should be equal to L by 100 minus L. यहाँ पे हम L का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 2 by 2 plus 3 L by 100 minus L. तो इसका नेक्स्ट वैल्यू कितना हुआ? 2 by 5 equal to
L 100 minus L. 200 minus 2L equal to 5L. 200 equal to 7L. L का value 200 by 7. 200 by 7 will be 200 divided by 7. 28.5 ले लेंगे. पहले कितना था बैलेंस लेंथ? 40 सेंटीमीटर. अब बैलेंस लेंथ कितना हुआ? 28.5 सेंटीमीटर. चेंज कितना है? 8.5 सेंटीमीटर. On shunting in the left, when erections and unwards, the balance length is found to be 40 centimeter. 12.5. Yeah. Balancing length will become 12.5. एक बार चेक कर लेता हूं मैं थोड़ा कैलकुलेशंस मेरा. ओहो, यहाँ पे सीरीज नो, आई थॉट सीरीज कनेक्टेड कितना ऑन शंटिंग का. शंटिंग बोले तो देन वी हैव टू टेक पैरेलल. ये हुआ 2 2x by 2 plus x. यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस. This will be 200. Shunting, मैं थोड़ा सीरीज लिया था. ओके, दिस शंटिंग नो कनेक्टेड पैरेलल. नो हम ऐसे सॉल्व करेंगे. वो सो दिस विल बी 2 by x. दैट कैलकुलेट करेंगे. 200 minus 2l 100x minus xl equal to xl. x का वैल्यू कितना है? 3 है. पहले x का वैल्यू पता है ना, वो रख देंगे. 2 plus 3 by 3 equal to L 100 minus L. ये तो कैलकुलेशंस थोड़े इजी हुआ ना. नो, 500 minus 5L equal to 3L. L का वैल्यू, okay, this will be 500 equal to 8L. L equal to 500 by 8. 500 by 8 कितना हुआ? 250 by 4. 250 by 4 divided by 4. 62.5. पहले बिफोर शेंटिंग इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना था? 40. अब कितना बैलेंसिंग लेंथ है? 62. सो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 22.5 सेंटीमीटर. शेंटिंग मींस कनेक्टेड पैरेलल, नॉट सीरीज. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. अगेन ये मीटर ब्रिज का है. A wire of length 10th and radius connected across the right gap of meter bridge when a resistance of 4 is connected to left gap by using resistance, but the balance found to be 8. The ratio of the wire, then the value of R. Directly, अगर आपको मीटर ब्रिज का फॉर्मूला याद रहे तो you should directly take the meter bridge formula. अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो then construct meter bridge. And these are the choices what you are having.
कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ मीटर ब्रिज. नो, ये तो बैलेंसिंग लेंथ है. ये तो लेंथ ऑफ द वायर. Right gap of meter bridge. A wire of length 10 radius connected across the right gap of a meter bridge. यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट कर चुके हैं. When resistance is connected to the left gap. यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 4.5 ओम. The balance is found to be at 60 सेंटीमीटर. बाकी बचे सो कितना? 40 सेंटीमीटर. इसका रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर. इसका आर वैल्यू पूछ रहे हैं. सम अदर वैल्यू ले लेंगे. ए, इसका बी. वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर रेडियस. पहले इसका वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे. सो ए बाई बी शुड बी इक्वल टू 60/40. ए का वैल्यू 4.5, बी 6/4, ए तो हुआ 3/2. 4.5 को भी आप 9/2 कर सकते हैं. तो बी का वैल्यू कितना हुआ? 3 ओम. तो दिस 3 ओम इक्वल टू आर रो लेंथ एल एरिया बाई एक्स स्क्वायर. ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है? एल, और इसका रेडियस है एक्स. तो यहाँ पे हमें रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, और हमें रेजिस्टेंस पता है. रेजिस्टिविटी. टू कंफ्यूज यू, यूजुअली हम रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या लेते हैं? हम विल टेक इट रो, बट यहाँ पे इंटेंशनली आर. तो दिस वन बेसिकली रो एल बाई. तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नो इसको रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं. दिस कैपिटल आर को रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं. सिंबल थ्रू सिंबल इज कंफ्यूजिंग, दैट्स ऑल. ओके, सॉल्व दिस, विल गेट द वैल्यू. ये तो सिंपल वीस्टोन, लाइक बेस्ड ऑन वीस्टोन नेटवर्क. अगेन मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन वीस्टोन नेटवर्क. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A wire of resistance R and length L is cut into 5 equal parts. If these parts are joined parallel, then the resistance of each part. So हमें यहाँ पे एक वायर है. It is cut into 5 equal parts, and all those parts are connected in parallel. The resultant resistance will be, they are connected in parallel. Then if you, this is having resistance R, L. So how much this will become? Length will become L by 5. इसका resistance कितना हुआ? R by 5, R by 5, R by 5, R by 5, R by 5. Then resultant resistance will be 1 by R dash should be equal to 1 by R by 5, 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 1 by R by 5. So this will become 5 by R by 5. Okay, this is effective resistance. Okay, agreed? Now very simple series parallel का अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो then you can manage this question very easily. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Again same Wheatstone network, simple ideas. Wheatstone based principle is to measure the specific resistance of given wire having length L. Radius R. If X is the resistance of wire, then specific resistance is the length of wire gets double, then the value of specific resistance will be. Specific resistance
द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक काम करेंगे, व्हाट इज एक्स? एक्स इज द रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल बाय पाई आर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वायर का लेंथ है एल एंड इसका रेडियस है 2 आर, 2 ए रख देंगे, रेडियस है आर। अगर यहाँ पे आप लेंथ को चेंज करें तो द रेजिस्टेंस विल चेंज। अगर रेडियस चेंज करें तो द रेजिस्टेंस विल चेंज। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। तो इसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है? S1। अगर इसको आप दो हिस्से में बांट दे दो, यू ब्रेकअप, इसको हम यहाँ पे दो हिस्से में कर देंगे, 2 3, आपकी मर्जी, जस्ट चेंज डायमेंशन। इसको यहाँ पे हम डायमेंशन चेंज करने पर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, X1 X2। So I agreed. Specific resistance is a constant for a given material and will be different for different material, where the resistance depends upon the dimensions. अगला क्वेश्चन ले लेंगे। A current of 200 microampere deflects the coil of moving coil galvanometer 60 degrees. The current to cause deflection through pi by 10. pi का वैल्यू कितना है? 180. So pi 180 रेडियन, so pi by 10 radian. The current to cause deflection through pi by 10. So now little bit यहाँ पे आपको डिग्री या रेडियन है, so you have to change it. No. एक काम करेंगे, सो 200 माइक्रो एम्पियर अब जब करंट फ्लो हो रहा है, कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन? पाई बाय 3 होगा। नेक्स्ट इसको आप द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू pi/10, pi/10 रेडियन के लिए कितना करंट चाहिए, डिवाइड कर दो। I by 200 into 10 to power of -6 equal to pi/10 pi/3। यहाँ पे एक जीरो हुआ, सो लगे 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -1 और 60 माइक्रो एम्पियर। अगर 60 माइक्रो एम्पियर अगर आप करंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? pi/10। अगर आप 200 माइक्रो एम्पियर फ्लो करे बोलते इसका डिफ्लेक्शन होगा pi/3। देखिए सिंपल स्केल है, जीरो, सो pi/10 तो कम हुआ ना। सो जब करंट फ्लो हो रहा है माई गैल्वेनोमीटर, ऑल दिस नॉट नीडेड, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये डिफ्लेक्शन हुआ pi/10, ये डिफ्लेक्शन हुआ pi/3। अगर आप जब करंट तो गैल्वेनोमीटर फ्लोइंग इस 60 माइक्रो एम्पियर, पॉइंटर यहाँ पे pi/10 पे रहता है डिफ्लेक्शन। अगर आप करंट तो गैल्वेनोमीटर इंक्रीज करके इसको 200 माइक्रो एम्पियर बनाए तो द पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट थ्रू हाउ मच ऑफ एंगल? इसका एंगल अप नाउ pi/3 रहेगा, द डिफ्लेक्शन विल बी pi/3। आई थिंक ये तो सिंपल आइडिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर है। इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज हाउ वी डिजाइन गैल्वेनोमीटर, द गैल्वेनोमीटर विल बी सो डिजाइन दैट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर आप एक बार रिवाइज कर लो, द फॉर्मूला इज देयर इन दैट द करंट इज मेड प्रोपोर्शनल टू द angular displacement of the pointer. How? By going for radial magnetic field. The concept is there. By applying radial magnetic field to the coil, then what we do, we'll make the current proportional to the deflection.
अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Two resistors of 100 ohm and 200 ohm are connected in series with a battery of 4 volt and negligible internal resistance. Your voltmeter is to measure, which gives reading as 1 volt. The resistance of voltmeter will be. यहाँ पे हम सर्किट कंसिडर करेंगे. 4 वोल्ट यहाँ पे एक बैटरी है. 4 वोल्ट ये हुआ इसका रेजिस्टेंस R1 R2. इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम. इसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम. The voltmeter is used to measure voltage across 100 ohm. यहाँ पे हम voltmeter connect कर रहे हैं, which gives reading of 1 volt. The reading of voltmeter must be, which gives reading as 1 volt. The reading of the resistance of voltmeter. ये voltmeter का internal resistance कितना है? So we are connecting one voltmeter across this. Okay, fine. इसका रीडिंग कितना है 1 वोल्ट है. Then voltmeter का भी एक रेजिस्टेंस रहता है, that is called as the internal resistance of voltmeter. Then total circuit का resistance now पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ पे 1 वोल्ट बोलते हैं, यहाँ पे कितना है 3 वोल्ट. जस्ट बेसिक सा, अगर आप फॉर्मूला लिख सकते हो पोटेंशियल डिवाइडर लिखो, यू कैन मैनेज विदाउट दैट पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ऑल्सो. अगर टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है, उसमें से 1 वोल्ट अक्रॉस R1, बाकी बचे तो कितना 3 वोल्ट तो अक्रॉस 200 ओम पे ड्रॉप होता है. देन वी विल डू वन थिंग. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सो 1 वोल्ट है, सो व्हाट इज द ड्रॉप हियर 1 वोल्ट. यहाँ पे करंट कितना है, we'll calculate current यहाँ पे I1, this will be I2. Then we know the drop and the resistance. We know the drop and the resistance, and we know this current. थोड़ा बुक्स में अलग दिया है, मैं थोड़ा बेसिक यूजिंग ओम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो फर्स्ट I का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. I is equal to 3 by R2, 3 by 200. तो इसका हुआ 0.15 और 1.5 इंटू 10 to power of -2 एम्पियर और 0.15 मिली एम्पियर. इसका I1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज दिस I? I इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, थ्रू द सेल. यहाँ पे ड्रॉप कितना है 3 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना 200, सो विल गेट द करंट. देन I1 फाइंड आउट करेंगे. द I1 विल बी, I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू यहाँ पे तो 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 100, तो इसका हुआ 10 मिली एम्पियर. तो कितना करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, करंट यहाँ पे तो 15 मिली एम्पियर यहाँ पे एंटर हो रहा है. 15 मिली एम्पियर. इसमें कितना करंट यहाँ पे जा रहा है 10 मिली एम्पियर. बाकी बचे तो 5 मिली एम्पियर तो यहाँ पे जा रहा है. नो, वी नो दिस ड्रॉप. यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट एंड करंट कितना पास है 5 मिली एम्पियर. यहाँ पे हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. ये वाला है तो ये तो वोल्ट मीटर है. सो नो 1 volt should be equal to 5 milliampere, 5 milli into voltmeter resistance. So this will be 10 to the power of 3 by 5, 1000 by 5, 200 ohm. बिना पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं. सर पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कैसे हम लेके यूज कर सकते हैं. 1 volt applied EMF 4, then resistance of these two R1 RV by R1 plus RV by R2 plus R1 RV.
आरवी। अगर फॉर्मूला आपको ये याद रहे तो ओके फाइन गुड, और एल्स जो मैं मेथड यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, सो यू हैव टू यूज दिस मेथड। So what is this potential divider formula? Hmm? The drop across this. Okay, यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और दिस 100 ओम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, हमें आरवी पता नहीं है, तो बट हमें यहाँ पे ड्रॉप पता है कितना है, 1 वोल्ट है। तो दिस 1 वोल्ट शुड बी इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ 4 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू, R1 RV बाय प्लस R2 प्लस दिस टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे सॉल्व करो आरवी, विल गेट आंसर। और इस वी आर यूजिंग द बेसिक ओम्स लॉ। हमें पता है यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप है, बाकी बचे सो 3 वोल्ट अक्रॉस R2। और यहाँ पे हमें 3 वोल्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और रेजिस्टेंस 200 है। इसका करंट कितना फ्लो हो रहा है, 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, एंट्री हो रहा है। इसमें से कितना, लाइक वी नो यहाँ पे ड्रॉप कितना है, 1 वोल्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना, 100 ओम। यहाँ पे हम करंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे करंट ब्रांच हो जाता है, तो थोड़ा करंट यहाँ पे डिवाइड होता है। सो 10 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो होता है, बाकी बचे तो 5 मिली एम्पियर विल फ्लो। दिस डायग्राम, 15 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसमें से 10 मिली एम्पियर यहाँ पे, बाकी बचे तो 5 मिली एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, और दोनों यहाँ पे कंबाइन होके फिर कितना, सेम 15 मिली एम्पियर। तो हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट करेंगे 5 मिली एम्पियर। अगर यहाँ पे हमें करंट पता है और वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप पता है, सो विल यूज ओम्स लॉ एंड विल गेट इट। सो वी आर मैनेजिंग जस्ट बाय ओम्स लॉ। दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। Two approaches, see, this is the Ohm's law, this is a potential divider method. Okay, fine. Now, next question is equivalent resistance of the following network across AB। यहाँ पे equivalent resistance find out करने हैं। यहाँ पे आप देख लो, एक वायर है। So what is the resistance of this 0 ohm parallel to 6 ohm will be 0। AB shorted, A short हो जाएगा। Then A 2 ohm 2 ohm, this will be parallel। मैं एक सर्क्यूट ड्रॉ कर देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस 2 ohm, a 2 ohm, 2 ohm, this 3 ohm, और a 3 ohm है, और एक पॉइंट ए बी, 3 ohm 3 ohm, 2 ohm 2 ohm, और a 2 ohm। नो, दिस रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टेंस है 0 ohm 6 ohm। सो ये शॉर्ट हो जाके ये दोनों हम एक वायर के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। 0 ohm parallel to 6 ohm will be 0 ohm, so 0 ohm। so now a 2 ohm, यहाँ से हम करंट सेंड करेंगे, यहाँ पे हम करंट सेंड करेंगे। दिस विल बी आई, कितना हुआ, ए आई वन आई टू। नाउ ये डिवाइड होके आई थ्री और आई फोर। आई फोर करंट नाउ डिवाइड होके आई फाइव एंड आई सिक्स। ये दोनों कैसे नो, दिस टू आर पैरेलल। 2 ohm parallel to 2 ohm will be 1 ohm। तो अगला सर्क्यूट, नाउ दिस विल बी 1 ohm, पॉइंट एक ले लो, P1 P2, P1 P2 वी आर रिप्लेस विद द वाई। नेक्स्ट P3 P4 क्या होगा वो देख लेंगे हम। जैसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे देन विल गेट सम आइडिया। नो यहाँ पे डायरेक्टली देख लो। नो दिस विल बी P3 P4 P5 P6, P1 P2 P3 P4। P1 P2, this is in series, this is in parallel। okay, these two are in parallel। तो इसका टोम कितना होगा, नो विल बी 1 ohm। अगला सर्क्यूट होगा नो P3
P4, this will be P5, P6. 3 ohm, 3 ohm. Is this will become 1 ohm. Three ohm and A and this is B. यहाँ पे check कर लो ना. This 3 ohm and this 1 ohm, they are in 2 ohm. ये जो 2 ohm है, this 2 ohm and 1 ohm, they are in series. That effect will come in parallel. दूसरा circuit 3 ohm, P5, P6, 3 ohm. ये देख लो सब, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे? They are in parallel. Effective resistance 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 will be 1 ohm. चेक कर लेंगे. So this will be shorted 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 3 ohm. Effective resistance RAB equal to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. ये हुआ कुल 1 ohm. थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है. This will be 1 ohm. Simple series parallel, very important. First, this will be shorted. We'll replace with a wire. Okay, fine. बाद में ये दो रेजिस्टर्स है ना, इसको हम 1 ओम से रिप्लेस कर रहे हैं. बाद में ये जो 2 ओम है, 2 ohm and this 1 ohm, they are in series. This will become 3 ohm. और उसके बाद में ये सब सीरीज पैरेलल में. So effective resistance will be 1 ohm. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. अगला क्वेश्चन अगेन मीटर ब्रिज का. The resistance per centimeter of meter bridge wire is R with X ohm resistance and balance length from left end is 40, 25 resistance right. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per the new balancing length. मीटर ब्रिज ड्रॉ करने का जरूरत नहीं. So, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग दिस. और बिना डायग्राम फॉर्मूला से आप मैनेज कर सकते हैं. तो वो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम डाल रहा हूँ. ये जो वायर है नो, resistance per centimeter of meter bridge wire is R with X ohm resistance in the left gap. यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? X ohm. Balancing length with 25 ohm resistance in the right gap. बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे 40 सेंटीमीटर में हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले. तो बैलेंसिंग लेंथ x बाई 25 ये हुआ 40 बाई 100. 0 0 2 5 5 x इक्वल टू 10 ओम. अननोन रेजिस्टेंस जो लेफ्ट गैप में there will be 10 ohm. No, the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. Sir, like आप ये 40 lambda इसका R का कैलकुलेशन में कहीं पे नहीं ले रहे. Okay, we'll do one thing. Lambda, okay, this one 40R. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? R है. लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर. ये 40 सेंटीमीटर का वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 40R. बाद में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कितना है? R है. ये वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट कितना है? R है. देन बाकी बचे 60 सेंटीमीटर. ये वाला 60 सेंटीमीटर का लेंथ, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये 60 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा?
60 आर। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आर आर कैंसिल हो जाएगा, 0 0, दिस विल बी 2, दिस विल बी 40 आर। थोड़ा कैंसिल 60, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 25 2/3, 50/3। इसका रेजिस्टेंस हुआ 50/3। नाउ द वायर इज रिप्लेस बाय अनदर वायर ऑफ 2R। अब इसका बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका वैल्यू कितना था, पहले R था। नाउ दिस विल बिकम 2R। सो यहाँ पे हम x/25, यहाँ पे LR/100 - x का वैल्यू कितना है, 50/3 इंटू 25, 2R एंड ए वो 2R। इसका रेजिस्टेंस पर लेंथ कितना हुआ, L2R, और इसका कितना रेजिस्टेंस है, 100 - L2R। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। सो द बैलेंसिंग लेंथ एक्स का वैल्यू कितना, 50/3 इंटू 25, 2R कैंसिल हो गया, 100 - L, और L का वैल्यू कितना, 40 सेंटीमीटर। ओके फाइन। तो ये थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसको हम इसका स्प्लिट करेंगे, 25 क्वेश्चंस को 12 और 13। तो अगले वीडियो में बाकी बचे 13 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, प्लीज शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट। Remaining will write it. Remaining questions of 2024 January shift in next video. Okay. Yeah, till then, bye. Take care.